All right, good morning, students. Today we are going to be continuing with Geography Chapter 8, Part 2, Economy and Occupations. Our objective for today is students will be able to comprehend the concept of per capita income. Per capita income, ये जो concept है, ये जो तीन शब्द है, इनका मतलब क्या है? We are going to understand that concept today and take notes on how India and Brazil compare with other countries. ये पर कैपिटा इनकम के रिलेशन में हाउ डज इंडिया एंड ब्राजील कंपेयर विद अदर डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड वी आर गोइंग टू लुक एट दीज टू थिंग्स टुडे ऑलराइट. So students, take your pen and notebooks, keep them ready because you will be writing during this video. What are the two things we are learning today? We are learning about, first thing is the concept of per capita income. Per capita income exactly hota kya hai, all right? And then we will look at India and Brazil versus other countries. India और ब्राज़ील, ये जो दो कंट्रीज जिनके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं पिछले few chapters से, how do they compare with other countries in the world in per capita income? We're going to look at that. Alright, so let's move on to the first concept, which is per capita income. Now, what is per capita income? First point, per capita income is a measure of the average amount of money earned per person in a country or a region. Per capita income, yani PCI, is a measure of what? The average amount of money. Average yani kya hota hai? Which is the middle amount or the mean amount of money earned per person in a country or a रीजन, कि एक इंसान एक साल के अंदर कितना कमाता है ऑन एन एवरेज, ऑलराइट, इन अ पर्टिकुलर कंट्री और अ रीजन, दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम. इफ आई हैव टू से इट इन हिंदी अगेन, एक इंसान किसी भी कंट्री में किसी भी रीजन में एक इंसान ऑन एन एवरेज यानी मिडिल ग्राउंड पे कितना कमाता है ऑन अ वेरी मीडियम मेजर, हाउ मच डज ही और शी अर्न. That is the per capita income. Alright. The per capita income is calculated by dividing the national income GDP with its population size. कैसे calculate होता है per capita income? By dividing the national income. कंट्री ने कितना कमाया है, alright, या फिर उस जगह ने कितना कमाया है versus should be divided by the population size, कि वहाँ पे कितने लोग रहते हैं. एंड इट इज़ मेजर्ड एवरी ईयर इन डॉलर्स. ये जो पर कैपिटा इनकम होता है, इट इज़ मेजर्ड एवरी ईयर, हर साल में जनरली मेजर होता है इन डॉलर्स. यू कैन मेजर इट इन अ मंथ ऑल्सो, यू कैन मेजर इट इन अ फ्यू वीक्स ऑल्सो, लेकिन ज़्यादातर लोग साल में ही गिनते हैं. ऑलराइट, नाउ let me give you a quick example before I'll give you a second example and then we'll move on. All right, now per capita income का एक example है. Now what is per capita income, कैसे calculate होता है? Dividing the national income. So let's say मेरे पास total 100 रुपए है. All right, let's say I am a country. All right, and मेरे पास total 100 रुपए है और मेरे country के अंदर 10 लोग रहते हैं. All right, तो when I divide that 100, मेरे वो 100 रुपए का जो income मैंने रखा है पूरे country के लिए, और पूरे कंट्री ने 100 रुपए कमाए हैं और उसमें 10 लोग रहते हैं, तो हर एक का कमाई कितना होगा? 100 डिवाइडेड बाय 10 और 100 डिवाइडेड बाय 10, विच विल बी 10 रुपीज पर पर्सन. तो पर कैपिटा इनकम इस एग्जाम्पल में क्या हो गया? 10 रुपए पर पर्सन. हर किसी का एवरेज इनकम 10 रुपए है. ऑलराइट, लेट्स लुक एट वन मोर एग्जाम्पल हियर. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, देयर आर 5 पीपल. ऑलराइट, 5 पीपल, और इन 5 लोगों का अलग अलग इनकम है, अलग अलग सैलरी है, अलग अलग पैसे कमाते हैं ये लोग. रेड पर्सन अर्न्स $25,000 a year, orange person earns $10,000 a year, yellow 10,000, green 16,000 and blue $21,000. सबका अलग अलग कमाई है, लेकिन वो एक ही जगह पे रहते हैं. ऑलराइट, एंड हाउ मेनी पीपल आर देयर? 5. तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले सारे के सारे डॉलर्स को या जितने भी पैसे पांचों जन ने मिला के कमाए उनको ऐड करूंगा. दैट बिकम्स माय टोटल इनकम और द नेशनल इनकम. ऑलराइट, एंड देन आई विल डिवाइड इट बाय द नंबर ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन कितना है? 1 2 3 4 5. तो टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, दिस विल गिव मी द पर कैपिटा इनकम, की हर एक इंसान मीडियम लेवल पे और ऑन एन एवरेज, ऑन अ मीन कितना कमाता है, ऑलराइट, या कितना कमाती है. दैट्स व्हाट विल फाइंड आउट विद पर कैपिटा इनकम, कि एक इंसान कितना कमाता है. नाउ व्हाई डू वी यूज पर कैपिटा इनकम? ये हमें जानने की जरूरत क्यों है? सिंपली बिकॉज पर कैपिटा इनकम हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि एक कंट्री में किसी भी एक इंसान का कमाई कैसा लगता है डॉलर्स में. ऑलराइट,
is he or she earning a lot, is he or she earning very little, इससे कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हमें पता चलता है. वी अंडरस्टैंड हाउ अ कंट्री इज ग्रोइंग एंड डेवलपिंग बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम. ना ऑब्वियसली देयर इज अ प्रॉब्लम विथ इट, क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में पैसे भी बहुत हो रहे हैं लेकिन लोग भी बहुत हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई हैव $82,000 इन इंडिया, लेकिन मेरे पास 82,000 लोग भी है, तो हर किसी का पर कैपिटा इनकम तो बहुत कम हो जाएगा, हर $1 पे आ जाएगा. ऑलराइट, बट इज दैट द केस? नो. ऑलराइट. Another second problem with per capita income is if someone is earning very very high amount, अगर कोई एक बंदा बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है और बाकी सब बहुत कम कमा रहे हैं, तो पर कैपिटा इनकम का एवरेज जो है वो थोड़ा इधर उधर हो जाता है. वाई? क्योंकि उसके वजह से हमें एक एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलता कि कोई कितना कमा रहा है. ऑलराइट, व्हाट हैपेंस इज फिर वो बड़े नंबर के आसपास वो एवरेज चला जाता है. वो बड़े जो इंसान सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है उसके आसपास वो नंबर चला जाता है पर कैपिटा, व्हेन दैट इज़ नॉट द केस. हर किसी का सैलरी, हर किसी का पैसा उतना ज़्यादा नहीं है. Alright, let me give you an example of the second statement I made. Let's say there are two people living in my country, alright, and the per capita income of the country is 10 rupees. ठीक है, मेरे कंट्री का इनकम 10 रुपये है और उसमें दो लोग रहते हैं. एक 9 रुपये कमाता है, दूसरा 1 रुपये कमाता है. ऑलराइट, नाउ व्हेन आई एड इट एंड आई डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 5. लेकिन 5 किसके ज़्यादा करीब है? 9 के ज़्यादा करीब है कि 1 के ज़्यादा? ऑलराइट, it becomes a little scattered, it becomes a little biased towards the people who are earning more. Alright, so that's why per capita income is a good measure of development of a country, but it's not very accurate. Alright, ये मतलब ज़्यादा ऐसा एग्जैक्ट नहीं है ये नंबर, सिर्फ बोलता है कि हाँ एक इंसान इतना इतना कमाता है किसी एक कंट्री में एक साल में. Alright, now let's move on to the next topic, which is India and Brazil versus other countries. Now India's per capita income is lower in comparison to developed countries like China, Russia, USA. अभी हम इस टेबल में ये देख सकते हैं कि 1960 से लेकर 2016 तक तीन कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम दिया गया है, ब्राजील, इंडिया और यूएसए. ऑलराइट, और किस में मेजर हो रहा है? यूएस डॉलर्स, $240, $90 वैसे. ओके, नाउ इफ यू लुक एट द टेबल, इंडिया का पर कैपिटा इनकम इस टेबल में सबसे कम है, एंड इन जनरल ऑल्सो इंडियाज पर कैपिटा इनकम इज वेरी वेरी लो. कौन से कंट्रीज के कंपैरिजन में? इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक चाइना, रशिया एंड यूएसए. चाइना, रशिया, यूएसए का 2016 का पर कैपिटा इनकम देखो, 56,280. ऑलराइट, दैट्स अ वेरी बिग नंबर. नाउ ये क्यों होता है? इंडिया का पर कैपिटा इनकम इतना लो क्यों है? दिस इज ड्यू टू हायर पॉपुलेशन. एज आई मेंशन, पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो फिर हर किसी का पर कैपिटा इनकम की कमाई का जो नंबर है वो कम हो जाएगा. ऑलराइट, लैक ऑफ एजुकेशन नहीं होगा तो लोग ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, और काम नहीं कर पाएंगे तो पैसे नहीं कमा पाएंगे, जिसकी वजह से इनकम कम हो जाता है. टेक्नोलॉजी भी अगर नहीं है तो काम जल्दी जल्दी नहीं हो पाएगा, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट्स नहीं कर पाएंगे, बेच नहीं पाएंगे दूसरे कंट्रीज़ को, जिसकी वजह से हमारा इनकम कम हो जाता है. एंड इनकम अपॉर्चुनिटीज़, इनकम यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज़. अगर हमें जॉब चाहिए तो उसके लिए हमें क्वालिफाइड होना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेटेड नहीं है हमारे कंट्री में, और हमारे कंट्री का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि हर किसी को जॉब नहीं मिलता. ऑलराइट, या हर किसी को कमाई करने के लिए बिजनेस शुरू करने का मौका नहीं मिलता. ऑलराइट, एंड दीज आर ऑल द रीजंस व्हाई द पर कैपिटा इनकम यानी हर पर पर्सन का इनकम इन इंडिया इज़ वेरी वेरी लो. ऑलराइट, and finally Brazil's per capita income is growing at a high rate due to improvement in various sectors. all right, यहाँ पे लिखा गया नहीं है because I think it got cut off by the bottom bar, लेकिन ब्राज़ील का per capita income जो है is growing at a very high rate due to improvement in various sectors. ब्राज़ील का तुम देखोगे टेबल में 240, फिर 2000, फिर 3000, फिर 8000, इतना जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया का स्लोली बढ़ रहा है. 90, 280, 450, 1680. तो इंडिया का इतना स्लो क्यों बढ़ रहा है, ब्राज़ील का इतना ज़्यादा फास्ट क्यों बढ़ रहा है? सिंपली बिकॉज ब्राज़ील हैज़ बेटर एजुकेशन, बेटर टेक्नोलॉजी, better job opportunities, and their population is also very very low, so they can work and
improve the population, लेकिन हमारे country में because the population is so high there are a lot of issues that are coming because of it कि सबको education नहीं मिल पा रहा है, सबको अच्छा technology नहीं दे पाएंगे, technology cannot be developed very well. Alright, so that's why India's per capita income is very low compared to other countries. ब्राज़ील का भी लो है डेवलप्ड कंट्रीज के हिसाब से. ब्राज़ील और यूएसए के बीच में कंपैरिजन करेंगे, ब्राज़ील का काफ़ी कम है. लेकिन इफ़ यू सी द ग्रोथ रेट, जिस हिसाब से ब्राज़ील हर साल हर 10-20 सालों में बढ़ रहा है, उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि ब्राज़ील विल डेवलप फास्टर देन इंडिया. ऑलराइट, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक in terms of per capita income. Now, with that, students, we have reached the end of our lecture. I want you to answer these two questions once you have finished writing your notes. Fill in the blanks with the appropriate word. India's per capita income is less than Brazil due to what reason? यहाँ पे 3 options है, तुम्हें एक option select करना है. And the second question is to check if you've understood the concept for today. Alright. If the GDP of a region is $480,000 and its total population is 600 people, what is the per capita income of that region? तुम्हें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि अगर इतना एक रीजन का पैसा इतना होता है $480,000 and its total population is 600 people, what is the per capita income of the region? उस रीजन में एक इंसान कितना कमाता है? How much does an individual earn in that particular region? That you have to find out. With that, students, we have reached the end of our lecture. Thank you so much for learning. If you have any doubts, reach out to me on WhatsApp, and you can text me or you can drop me a message saying that you have a doubt. And I will be in school today, so most of you, please do not contact me between 9 o'clock to 2 o'clock. All right, have a nice day, all of you.